اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیں گے اور میرے ساتھ بولیں گے ذبح کیا ہوا برراہی عبادت پرستش سجدے اور تمجید کے لائق ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت تک دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ مجھے آسا کی مانند ناپنے کی ایک لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس و قربان گاہ اور اس میں عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اسے نہ ناپنا کیونکہ وہ غیر اقوام کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے، اور میں اپنے 2 گواہ کو اختیار دوں گا کہ وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور ہی مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ اس نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں آج کے کلام سے آمین، ان کے اندر ندیاں جاری ہو جائیں، آمین، آمین، اور وہ خدا کے ابر اور خوف سے بھر جائیں، آمین، اور جان جائیں کہ ان کا خدا آنے والا ہے، اپنی ذات پر اپنی روح پر مہر کر کر زندگی بسر کریں، کیونکہ آپ مسح شدہ ہیں اور برے کی مہر آپ پر ہوئی ہے۔ کتنے چاہتے ہیں یہ مہر مجھ پر اور ظاہر ہو جائے، آمین، میرے کان کھل جائیں، آمین، میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی، بے شک، بے شک، آمین، میرے ہی ہونٹ اس کی حمد و ثنا کریں گے نہ کہ بیگانہ کے، کے، آمین، میرا یہ بدن اس کی ہیکل بنے گا نہ کہ بیگانہ کا، آمین، اور اس بدن میں ہر کوئی جلال جلال پکارتا ہے۔ سو کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ جلال آپ کے ساتھ رہے؟ آئیے بلند نعرے کے ساتھ خدا کے کلام کی تمجید اور تعظیم کریں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، یسوع کے خون میں، پتہ ہے، یسوع نام میں، پتہ ہے، ایک تقدس، آمین۔ ایک تعظیم آپ کے بیٹھنے میں۔ آج کا کلام میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، جس دن ہماری قوم نے، مسیحی قوم نے اپنے کاموں کو الگ کر لیا اور خدا کی پرستش کو وقت دینا شروع کر دیا، میں خدا کا خادم پاسٹر ندیم اسرائیل آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، مصیبتیں، بیماریاں آپ کی زندگی سے بھاگ جائیں گی، کیونکہ خدا ہر چیز کو ناپتا اور تولتا ہے، اس کی ہر چیز پیمائش میں ہے۔ وہ عجیب ہے اور اس کے کام حیرت انگیز ہے۔ اس نے ایوب سے کہا تھا، تو اس وقت کب تھا جب میں نے آسمان اور زمین کے نیچے سوتر کھینچا تھا۔ خدا کی ہر چیز پیمائش میں ہے، آسمان کی بلندی، سمندروں کی حدیں، پہاڑوں اور وادیوں اور چٹانوں کی شگافیں، زمین اور اس کی ساری معموری اس کی پیمائش میں ہے۔ اس نے کسی چیز کو بے ترتیب نہیں بنایا ہے، بلکہ ہر چیز میں اس نے ایک ترتیب اور تسلسل رکھا ہے۔ اس نے آسمان کی گلیکسی کو بھی ایسا بنایا ہے کہ زمین سے بڑے سیارے اور ستارے ہیں، پر وہ زمین کے محور سے نہیں ٹکراتے ہیں، کیونکہ اس کی پیمائش اور اس کا سسٹم ایسا عجیب ہے کہ آج تک دھرتی قائم ہے، دنیا قائم ہے۔ دنیا بدل گئی، دنیا والے بدل گئے، نہ آسمان بدلا، نہ زمین بدلی، نہ خدا بدلا، نہ اس کی کائنات بدلی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت
मजबूत और अजीब तरीके से बनाया गया है, क्योंकि वो अजीब और मशीर कादिर मुतलक बाप है, वो अब्दियत का बाप और सलामती का, उसी ने हमें बताया है सलामती के शहजादे ने कि बाप की पैमाइश कैसी है। यहां अजीब बात दिखी है। जब मैं पढ़ूंगा, पहले जब मैंने पढ़ा तो आपको समझ नहीं आई। मकाशफा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले क्या है? साहब मुबारक है। ये घड़ी आसमान पर आपके लिए लिखी जा रही है जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं। आप वो दुल्हन है, आप वो कलीसिया है जिन्हें खुदा ने चुना है कि वो खुदा की मकाशफा में से आवाज को सुने, क्योंकि मकाशफा में आसमान का फ्यूचर है, आपका मुस्तकबिल है, और आपके मुस्तकबिल में आपका खुदा नजर आता है। सो मुझे आशा की मानद एक नापने के लिए लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मुकद्दस और कुर्बान गाह और उसमें इबादत करने वालों को क्या कर नाप ले। आपकी पैमाइश होती है जब आप प्रस्तुत करते हैं, जब आप खुदा के घर में वक्त पर पहुंचते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, कितनी देर अपने रूम में गाया, कितनी देर आप खुदा के साथ रहे, और कितनी देर आप मुकद्दस और ताजीम से खुदा की इबादत करते रहे, आपकी पैमाइश होती है। हर चीज को नापा जाता है और उस नापने के हिसाब से आपको बरकत दी जाती है। सोचें कि ये प्रस्तुत कैसी बुलंद है। यहां साफ दो अल्फाज में ये पूरी आयत का सीगा है, अगर आप गौर करें। और मुझे आशा की मानद नापने की एक लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मुकद्दस कुर्बान गाह और उसमें इबादत करने वालों को क्या कर नाप। अब इबादत करने वालों से क्या नाप, यानी कि उनकी इबादत को नाप कि वो किस तरह से इबादत करते हैं, और उनकी इबादत का तरीका कार क्या है। क्या वो मेरी तमजीद और ताजीम के लिए जमा है? क्या वो मेरे घर में मेरे लिए आए हैं? क्या वो इस लिए आए हैं कि आकर उसकी इबादत और प्रस्तुत करें? क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी इबादत और प्रस्तुत के लिए पैदा किया है। याद रखिए, अब्रीस से प्रस्तुत छीन कर आपको दी गई है, ताकि आप अपने मुंह से, अपने हाथों से, अपने साज आवाज से, दस्तरा साज के साथ अपने दोनों हाथों की तालियों से खुदा की हम्द व सना करें, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी। मैं सच कहूं, आपने कभी ऐसी रूह से प्रस्तुत नहीं की है। मैं जानता हूं आपको, मैं आपके ख्यालात, आपके रुझान को जानता हूं। लेकिन जिस दिन हमने ये काम पकड़ लिया कि मुझे खुदा की हम्द व सना करनी है, और इसलिए करनी है कि आसमान पर मेरा एक मकाम है, मेरा एक अजर है, और जमीन पर उसका वादा है कि अगर तू मेरी इबादत प्रस्तुत करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे घर से, तेरे जिस्म से बीमारी जाती रहेगी, तेरे इलाके में कोई बांझ ना रहेगी, तेरे मुल्क में सूखा ना पड़ेगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा हाथ पकड़कर कौम में कहेंगी मुझे तेरे खुदा की इबादत और प्रस्तुत करनी है। सुना है कि तेरा खुदा जिंदा खुदा है। ये सारी फिजा आलूदा है, आपके घर की, आपके ख्यालात की, आपके दिल की, आपके घर की चौखट की, आपके इज़्दिवाज की, आपकी कारोबारी जिंदगी में, हर जगह अब्रीस, उसका लश्कर इस सारी फिजा को आलूदा किया हुआ है, क्योंकि वो आसमान से गिरा दिया गया है, उस फिजा में रहता है, और इस फिजा को वो आलूदा रखता है, जिसकी वजह से हमारे ख्यालात प्रस्तुत की तरफ नहीं लगते, हम भटक जाते हैं। हम उस सुर से
और उस अल्फाज को जगाली कर कर नहीं गाते हैं, एक रस्मी, एक गजली, एक म्यूजिक समझकर उसको गाते हैं, ना कि इस तरह से कि ये खुदा का कलाम है और खुदा की हमद सनाएं रूह और सच्चाई से करने का फजल आप पा सकें। ये बड़ी बड़ी बदकिस्मती है, ये आपका नहीं, सारी कौम का हाल है, सारी मसीही कौम का यह हाल है। बहुत कम लोग हैं जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी हमदो सना करते हैं। वो ढूंढता है कि किसकी पमाइश की जाए, आपकी पमाइश करना चाहता है। और जब ऐसी बरकत के लिए फरिश्ता निकलता है तो वो देखता है कि ये इस पमाइश के लायक नहीं है, वो आपको छोड़ देता है। और अगर आप लायक हैं तो आपकी पमाइश करेगा। और जब आपकी पमाइश हो जाती है तो फिर आसमान आपके लिए खुल जाता है, ऐसे ही खुलता, आपका ढीला सा खुल जाता है। हम उस रूह, उस जान, उस मस्सा के साथ खुदा की हमदो सना करते ही नहीं है। बनी इसराइल को बहुत से दफा सजा मिली क्योंकि वो खुदा की बातों को रस्मी तौर पर करना शुरू कर दिया। रस्मी इबादत, जैसे बहुत सी इबादत गाहों में रस्मी इबादत होती है। खुदा रस्म नहीं है, खुदा रूह है। और खुदा ऐसे परस्तर ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी हमदो सना करे। मैंने नहीं कभी देखा कि आप महवो प्रस्तुश और प्रस्तुश ने आपको भुला दिया गया हो कि आपके इर्द गिर्द कौन है, कैसा माहौल है आपके गिर्द, क्योंकि आपका अपने अंदर एक माहौल है। उस वक्त आपकी पमाइश शुरू हो जाती है। हालेलुया। खुदा आपकी पमाइश करता है, आपकी प्रस्तुत की हमदो सना की, वो एक एक चीज का आपको अजर देता है। इसलिए हमारे बहुत से खानदान बरकत नहीं पाते हैं। आप अपनी सब चीजों को खुदा के आगे रख लेते हैं और उसको अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। इंसान बहुत कमजोर है, वो खुदा पर भरोसा नहीं करता है। अयूब हर रोज उसके बेटे और बेटियों की तरफ इबादत होती थी, शुक्रगुजारी की, और वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और अपने बेटों के लिए वो कुर्बानी करता ताकि कोई बाप के हुजूर को खता गलती उनसे ना होगी हो। वो उनको पाक साफ रखता क्योंकि वो जानता था कि जिसकी इबादत करते हैं वो पाक और साफ है। शायद हम में से कोई भी नहीं सोचता कि मुझे सबसे पहले जाना है ताकि मैं जाके इबादत करूं, मुझे परस्तार से भी पहले पहुंचना है ताकि जो ही वो शुरू करे तो मैं खुदा की हमदो सना के लिए, कोई हो ना हो, खादम भी चाहे ना हो, ना कलीसिया हो, पर मुझे जाना है और खुदा की हमदो सना करनी है। आपकी ये नियत ही जब आपको खुदा के घर में लाएगी तो आपके से पहले ही फरिश्ता आपकी पमाइश के लिए क्या होगा? खड़ा होगा। अपने खुदा की प्रस्तुत की मस्सा नहीं देखा है, मैंने ऐसी बहुत सी इबादत अटेंड की। खुदा की हजूरी तब तक आपको मयस्सर नहीं होगी जब तक आप खुदा की हमदो सना नहीं करेंगे। और जानते हैं इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा की हमदो सना करें, क्योंकि वो जानता है जो ही आपने रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हमदो सना की, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका नसीब बदल जाएगा, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी। और यहां क्या लिखा है? खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है
जो रूह और सच्चाई से उसकी हमदो सना करते हैं, ताकि उनकी क्या की जाए? पमाइश की जाए। जानते हैं कि इस्राएल सब कौमों में ज्यादा ताकतवर क्यों ठहरा? क्योंकि वो जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। शायद आपने कभी उनको इबादत करते नहीं देखे। वो बिल्कुल एक आवाज होकर एक एक कदम उठाकर झूमते हैं, एक एक गीत की जगाली करते हैं, एक एक लफ्ज की जगाली करते हैं, उसे बार बार कहते हैं, सुर और लय के साथ कहते हैं। और खास तौर पर जब खुदा का नाम उसमें आता है, उनका तकद्दस देखने वाला होता है। वो बगैर नहाए धोए खुदा की इबादत नहीं करते, वो इस इबादत को बहुत दर्जा देते हैं। यहां तक कि खुदा की इबादत का जब वक्त होता है तो उनकी सड़कों पर अशारे बंद हो जाते हैं और पूरी कौम खड़ी हो जाती है कि ये वक्त खुदावंद के जलाल के लिए है और उसकी हमदो सना उसके घर में हो रही है। उस तकद्दस से लोग सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। तो फिर बरकत क्यों ना मिलेगी? बरकत आपके रवैये में है। मेरे ख्याल में हम में से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जैसा यहां लिखा है। ये अफसोस की बात है, लेकिन हम बदल सकते हैं आज के कलाम के वसीला से। क्योंकि जब हम उसका कलाम सुनते हैं और फिर हम अपने ईमान को महतरक करते हैं, और जब हम ईमान में आते हैं तो हम किस में आ जाते हैं? रूह में आ जाते हैं। और जब आप रूह में आ जाते हैं तो सब चीजें बदल जाती हैं। खुदा के तख्त पर हर वक्त खुदा की हमदो सना होती है। वहां लाखों करोड़ों फरिश्ते खुदा की हमदो सना करते हैं, और इस तरह से वो पाक रहते हैं और वो खुदा के जलाल में रहते हैं, खुदा के अबर में रहते हैं, और खुदा की ऐसी हजूरी में रहते हैं कि उनको जमीन पर आसमान पर किसी चीज की परवाह नहीं होती है, बल्कि वो अपने खुदावंद के ताबे रहते हैं। ये प्रस्तश उनके लिए ऐसी जलाली है कि वो इसको मिस नहीं करते। मैं मानता हूं कि हम मुश्किल में हैं। हम जिस्मानी तौर पर बहुत सी चीजों को तैयारी करनी पड़ती है। हमें कपड़ा पहनना पड़ता है, खाना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, पैसा भी चाहिए, वक्त भी चाहिए। इन सब प्रोसेस हम गुजरते हैं। लेकिन जब हम इन सब चीजों में से निकलकर आकर खुदा की हमदो सना के लिए रूह और सच्चाई से खड़े हो जाते हैं तो आपकी पमाइश शुरू हो जाती है। हालेलुया। आसमान पर हर वक्त हालेलुया 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 की आवाज आती है। ये ज़मीनी लफ्ज नहीं, आसमानी है। और मसीही कौम के अलावा कोई कौम इसको नहीं कहती है। ये हर जुबान में ऐसे ही बोला जाता है, चाहे लतीनी हो, अब्रानी हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, पंजाबी हो, इसे हालेलुया ही कहा जाता है और खुदा की हमदो सना की जाती है। और ये चीजें आपको बरकत देती हैं। प्रस्तिश की पमाइश की गई और मुझे आशा की मानद नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मुकद्दस और कुर्बानगाह और उसमें इबादत करने वालों को नाप, और सहन को भी जो मुकद्दस के बाहर है खारिज कर दे। उसे ना नापना, क्योंकि वो गैर अक़वाम को दे दिया गया है, और मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पमाल करेंगे। खुदा का घर खुदा की हजूरी और उसकी इबादत और प्रस्तश के लिए है। और जब इसकी